انہاں نے خدمت وچ پیش کرساں، پھر اس تو بعد اے اپنے خیالات عالیہ نال اساں کی آگاہ کرساں۔ مرزا سلیم صاحب اگے اور حکیم عبدالرؤف کیانی صاحب اگے میں گزارش کرساں اے صدر برگزی پٹوار پریس کلب گجر خان نے کہ وہ اپنے دست مبارک نال انہاں کی شیلڈ دین۔ جناب حکیم عبدالرؤف کیانی صاحب اور مرزا سلیم صاحب سٹیج پر سامنے آ جاؤ جی۔ اور اے جڑی اج نے پروگرام وچ نا خصوصی شرکت کی تھی، اس نے است شیلڈ پروفیسر ڈاکٹر نثار ترابی صاحب کی پیش کرو، پھر اس تو بعد میں مائک انہوں نے حوالے کرنا جی، اور کیمرہ مینہ کا گزارش ہے کہ وہ بھی تصویر جڑی ہے۔ جی بہت شکریہ جی، اور مائک جناب پروفیسر نثار ترابی صاحب نے حوالے جی۔ آج نے تقریب نے مہمان خصوصی ہے، انہیں عزت افزائی کی تھی، ساڑھے خطے کی، ساڑھے علاقے کی، جنجار کی انہیں عزت بخشی، اسانی تاڑیاں نے گونجے جی۔ پروفیسر ڈاکٹر نثار ترابی صاحب۔ گچھے کرے باز ترابی سخن کوئی بھی بولا، گچھے کرے باز ترابی سخن کوئی بھی بولا، جپاں پاک نبی نا ناما چپ نے جندرے کھولا۔ بڑی نوازش، سٹیج پر تشریف فرما بہت عمدہ سیرت نگار، بہت عمدہ انسان جناب عبید اللہ توحیدی صاحب، سٹیج پہ رونق افروز گجرات وزیر آباد، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اشفاق بخاری صاحب، سلیم مرزا صاحب۔ میں سوچ رہا تھا کہ کبھی دو مرزا صاحبان سٹیج پر ہوں تو مجھے عظیم قادری کا وہ گیت کا ایک مکھڑا یاد آ جاتا ہے کہ چن چن دے سامنے آ گیا، میں دعا تو صدقے جاواں نہیں اڑیو عید مبارک۔ مگر یہاں تو ماشاءاللہ مرزا صاحبان کی مطلب ایک درجنوں بھر تعداد ہے، اور یہاں جو بہت ہی زیادہ معروف ہمارے ڈنمارک سے تشریف لائے ہوئے جناب نواز مرزا صاحب، مبین مرزا صاحب اور سلیم مرزا صاحب، میں سوچ رہا ہوں کہ آغاز کہاں سے کروں۔ دامن وقت میں جس حد تک گنجائش تھی وہ اب اپنی آخری انگڑائیوں میں ہے، اور دو پہر پھر سے پہر پھر اس کے بعد شام کے ڈھلنے کا وقت بھی ہے، مگر یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ جو تقریب کا وقت تھا اگر اس کا دورانیہ 1 گھنٹہ تاخیر سے بھی شروع کیا جائے تو یہ کم و بیش 3 بجے تک، 3:15 بجے تک یہ تقریب چلے گی، تو یہ تقریباً 4 گھنٹے کا دورانیہ بنتا ہے۔ اور یہ 4 گھنٹے آج سلیم مرزا صاحب کی 4 دہائیوں سے بھی زیادہ کی زبانی مدت ہے، جس میں ان کی شعری ریاضت کا رس رچاؤ اور خون شامل ہے۔ مجھے مئی 98 کی وہ شام نہیں بھولتی جب پہلے پہل ایتھرو ایئرپورٹ پر میں ممتاز مزاج و شاعر سرفراز شاہد صاحب کے ساتھ اپنے ایک دوست کے ہاں ایک عالمی مشاعرے میں شرکت کے قیام کی غرض سے پہنچنے کے لیے بخش لالپوری صاحب کے ہاں جانے کے ارادہ کر رہا تھا۔ آج دونوں مرحومین کو یاد کر رہا ہوں، کیسے کیسے دلدار لوگوں کو بھی مرحوم کہنا پڑتا ہے، یہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ بخش لالپوری صاحب بھی اب دنیا میں نہیں ہیں، اور سرفراز شاہد صاحب ممتاز مزاج گو شاعر بھی اب ہم سے بچھڑ چکے ہیں۔ مجھے کھلے بازوؤں کے ساتھ
और खुले दिल के साथ और खंदा जबीनी की अजीम शान रिवायत को अपने हम रकाब रखे हुए सलीम मिर्ज़ा साहब जब ब्रेडफोर्ड से लेने आए, वो दिन और आज का दिन, ये लंबी रफाकत मोहब्बतों में और बामी संगत में और प्यार में इजाफा करती चली गई। और फिर जब इनकी पहला शेरी मजमुआ कतरा के नाम से शाया हुआ, उसके फ्लैप पर भी मैंने लिखा कि सलीम मिर्ज़ा एक ऐसा शख्स है जिससे जब भी मिला जाए ये एक ही रंग में नजर आता है। हालांकि ये अजीब इत्तेफाक है कि हुस्न की बुनियादी तारीफ ये है कि हुस्न का कोई एक रंग नहीं होता। हुस्न की तारीफ जब तमाम दुनिया के शोरा ने की तो सबसे उम्दा जो तारीफ आज तक अंग्रेजी अदब की कोटेशन बनी हुई है वो कीट्स की है कि शी वॉक्स इन ब्यूटी। मेरा महबूब जहां जहां घूमता है वहां वहां उसका हुस्न जो है वो अपने रंग बदलता है। तो हुस्न जो है वो हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने महबूब से कभी भी मुबालगे की तवक्को न करो, इसलिए कि वो तुम्हें कम बताता है जो उसके दिल पर गुजर रही होती है। तो ये जो मुबालगा है मोहब्बतों में ये बहुत जायज है, इश्क में तो मुबालगा और ज्यादा जायज हो जाता है। अब आगे चलकर मैं अपनी मारूजात जब पेश करूंगा तो लफ्ज़ इश्क के इस्तारे में इनके यहाँ जो लफ्ज़ इश्क का इस्तारा कहाँ तमसाल की सतह पे आया है, कहाँ उसने तशबीह की शक्ल बदली है, कहाँ वो लोकाई के मानों में लोकल रहतल के मानों में आया है, कहाँ उसने मुहावरे का रूप धारा है, कहाँ वो रोजमर्रा के मानों में आया, और कहाँ खालिसतन गुजर खान की जो एक खालिसतन हमारी पोटवारी जबान की जो हमारे यहाँ चूंकि पोटवार लबो लहजे में भी जो पहाड़ी अंग आता है, गुजर खान चूंकि पोटवार का दिल है, यहाँ जो पोटवारी बोली जाती है। मगर इनके यहाँ एक कमाल की बात वो है जो हमें बाकी सिद्दीकी गड्डी लंघ गई पीछे रह गया, पा पा करना टेशन ते शां शां करने का। ये कच्चे घड़े के खालिक शायर खिता पोटवार के वो अजीम शान सूफी शायर थे जो 75 तक हमारे साथ रहे, हमारे अदब का मान रहे। इन्होंने जो 1900 के आगाज में जब विसाल हुआ मियां मोहम्मद साहब का, और ये हमारे अजीम शान सूफी रिवायात की लड़ी के सहबाने दानिश यहाँ तशरीफ फरमा है, सबसे आखिरी शायर थे। हम अगर इसे बाबा फरीद से लें तो जितने भी हमारे सूफी शोरा हैं, इन तमाम सूफी शोरा के यहाँ और दुनिया के जितने भी बाकी सूफी शोरा हैं, असल में ये वो दौर था जब शायर सिर्फ शायर ही नहीं होता था, सूफी शायर होता था। उनके यहाँ बुनियादी इंसानी कदरों की तरवीज और इसका पैगाम जो था वो उनकी शायरी का बुनियादी महवर था। और सलीम मिर्ज़ा साहब ने आगाज़ शायरी में जिस किताब का नाम कदरा रखा, फिर आगे शेरी रियाजत में चलते हुए वो गूढ़े साग में ढला। गूढ़े साग इसलिए कि वो रिश्ते जो बहुत गहरे रिश्ते इन्होंने बरतानिया में जाकर जदीद अहद के तकाजों से हम आहंग होते हुए नहीं देखे और उनको रंग बदलते हुए देखा, तो वो गूढ़े साग इन्हें परेशान करने लगे कि वो साग, वो रिश्ते जो अज़ल से हमारी फितरत का हिस्सा है, आज उनमें वो लज्जत और वो खसूसियत और वो अखलास क्यों नहीं रहा। फिर आगे चले तो हमारी भतीजियाँ बड़ी हुई, इन्होंने उन्हें अपने घर के लिए सोचा कि जो उनका असली घर है, जो उनका ससुराल है, वहाँ तो इन्हें गुड़िया पटोले याद आए। तो इनका तीसरा मजमुआ जो है वो गुड़िया पटोले है। उसके बाद जब उन्हें रवाना कर दिया तो वो जो अपना दिल का चैन, अपने दिल का करार, एक अजीब मुस्तरब तख्लीकार है ये शख्स जिसे सलीम मिर्ज़ा कहते हैं। उसके बाद इन्होंने फिर अपने बच्चों की हिजरत में, अपने बच्चों के हिजर में, उनकी मोहब्बतों में इनके यहाँ मीठी कूकों ने एक रूप धारा और उसमें इन्होंने बेटियों के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने अंदर की जो कूके थी, अपना जो हाड़ा था, उसे इन्होंने कोटवारी शक्ल में पेश किया। आप जरा मुलाहिजा फरमाएं कि इनके शेरी सफर में रियाजत की ये जो तवानाइयाँ हैं, इनके जो सिलसिले हैं, वो ऐसे शानदार अंदाज में और ऐसे बामानी अंदाज में। एक तो ये इनकी एक किताब का नाम कल्बे सलीम भी है और वो बिल्कुल इसम बा मुसम्मा है, कल्बे सलीम।
यानी वो अपनी मानवियत की पूरी जो है ना उसमें जो एक खुसूसियत है वो हमें दिखाई देती है और वो महसूस होती है जब कोई भी सलीम मिर्ज़ा साहब से मिलता है कि इनके अंदर वाकई एक कल्बे सलीम है। फिर इसके बाद इन्होंने मिर्चियाँ कुका के बाद जब बहुत ज़्यादा तड़फे तो ये आते जाते रहे और ज़्यादा अरसा फिर उन्होंने पाकिस्तान में आकर गुजरखान में रहना शुरू किया। तो इसमें इन्होंने सानिया यादा एक इनका मजमू आया जिसमें इन्होंने मजमूई तौर पर अपने असाजा का जिक्र किया, अपने साथ के उन बचपन के दोस्तों का जिक्र किया जो गुजरखान में इनके साथ प्राइमरी की सतह तक रहे, मिडिल की सतह तक रहे। फिर ये अपने इसी मखसूस पढ़ने के साथ मुझे जब पहली मरतबा भी ये इनसे फ़ोन पर बात हुई थी इंग्लैंड में तो इन्होंने फरमाया था कि मैंने कहा मिर्ज़ा साहब आपको कैसे पहचानेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि मेरी पहचान जो पढ़ना है, तो जब आप मुझे मिलेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे कांधे पर पढ़ना होगा। असल में ये जो पढ़ना है ये मोहब्बत का पढ़ना है, ये पढ़ना जो है ये उस अखलास का पढ़ना है, उस दर्द का पढ़ना है कि जिस दर्द और जिस अखलास में आज भी इनकी शख्सियत का एक एक हिस्सा जो है वो तड़प रहा है, गूंज रहा है। ये जो दर्द है ये इतनी अजीम शान शय है कि दुनिया की जितनी भी अजीम शान शायरी है वो दर्द से शुरू होती है और दर्द पर ख़त्म होती है। क्योंकि दर्द जो है, रोना हमारी फितरत है, हंसना हमारी फितरत नहीं है, हंसना हमारा इख्तियारी अमल है। जब बच्चा रोता हुआ पैदा नहीं होता तो दाइया परेशान हो जाती है कि ये बच्चा मुर्दा है। मुबारकबादियाँ तब वसूल होती हैं जब रोना शुरू होता है। तो इंसान इस दुनिया में आता भी रोने के लिए है और जाता है तो उसके साथ रोने का एक सफर होता है। ये जो दर्द की सौगात है ये इश्क की सौगात है, ये वो इंसान दोस्त शायर की सौगात है कि जो आज भी लोग कहते हैं जी कि माजी की बातें तो वो लोग करते हैं जिनके पास हाल नहीं होता, मुस्तकबिल नहीं होता। मैं ऐसे दोस्तों से कहता हूँ कि मुझे माफ कीजिए, किस हाल की बात करते हैं? इस हाल की बात करते हैं जिसने हमें बेहाल कर रखा है। यानी ये हाल अगर आप कौमी सतह पर भी इस हाल को देखें और इसी हाल को फैलाकर आलमी उफक पर जब आप देखें तो आलमी अमन की सतह पर इसे देखें, दहशतगर्दी की सतह पर इसे देखें, इंतशार की सतह पर इसे देखें। इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला यह कि इंसान अपने आप से रूठ चुका है। अपने आप ही अपने अंदर ही उसने एक जो है ना वो एक ऐसा दर्द बसा लिया, एक ऐसा शहर बसा लिया है। शहर तो उजड़ गए और कौन से शहर उजड़े हैं? मिर्जा साहब फरमाते हैं दिलों के शहर उजड़े। ये जो दिल है ना, ये जो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दिल से हो जाओ, पूरे मुसलमान दिल से हो जाओ, पूरा ईमान दिल के साथ। ये जो पूरा लफ्ज़ है और दिल के साथ है, ये सारी खेल जो है, ये सारा खेल जो है ये दिल का ही है। अलामा जैसे बड़े शायर ने जब ये कहा था कि बेहतर है साथ रहे पास बाने हक, लेकिन कभी कभी इसे तरह भी छोड़ दे, तो ये दिल की कैफियत होती है वो बड़ी कैफियत होती है और वो इश्क की कैफियत होती है। अक्ल जो है, अक्ल तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैवे तमाशाए लबे बाम। तो अक्ल जो है वो तो कहती है कि यहाँ तो छलांग लगाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। ये दिल है जो किलादाना सतह पर जब मैवे रक्स होता है तो फिर उस रक्स का जवाब नहीं है। उसी रक्स में सुरूर भी है, उसी रक्स में सारे के सारे जो इनामात है अल्लाह पाक ने दिखती हैं। ये इश्क का जो सफ़र है, ये जब हम मक्के मदीना के इस अजीम शान हस्ती का सफ़र देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुझे ना बनाता तो कायनात की किसी शय को तख्लीक न करता। तो ये सारी कायनात जो है ये सरकार के सदक़े में हमें नसीब हुई है और सरकार का जो इश्क का मकाम है सरकार के यहाँ और फिर पूरी दुनिया के यहाँ जो है इश्क की ये वाहिद इश्क है कि तमाम सरकार के चाहने वाले एक दूसरे से इश्क करते हैं। वरना इश्क अपने मानों में एक ख़ास तरह का इस्तराब रखने के साथ साथ एक ख़ास तरह का हसद भी रखता है। कोई एक दुनियावी आदमी से जो इश्क कर रहा होता है, दूसरा भी अगर उससे इश्क करता है तो वो रकीब शुमार होता है। मगर सदके जाएं इस इश्क के कि जिसके आशिक जो है वो सारे एक ही कतार में आकर एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूदो आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये सलीम मिर्जा साहब ने ये जो शेरी सफ़र की मैं बात कर रहा था, कल्बे सलीम के बाद पूंजी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इन्होंने अपनी शायरी, उसका उन्वान दिया। मैं उन्वानाती दायरे में अभी आपको लाना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है आप साहिबान इल्म हैं और आपके इल्म में है लफ्ज़ पूंजी क्या है। हमारे पास पूंजी आजकल क्या होती है? यही होती है कि फलां आदमी के पास यार क्या पूछना है वो पापा, बड़ा अल्लाह ना करम उस पर यारो तो को लड़ा लगियाँ कोठियाँ ना भी अंत शुमार कोई नहीं। हम आमतौर पर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। हमारे यहाँ जो एक अमूमी रवैया है वो भी ये है कि 1 लाख रुपए की सोने की अंगूठी होगी, 1 करोड़ की गाड़ी, यार पापा क्या करा कसमें किज नहीं पड़ना, बड़े बड़े बंदे त्याड़े किज नहीं पड़ना। यानी एक नाशुक्री की मंजिल
ایک عمومی رویے کی بات کر رہا ہوں، جنہیں اللہ پاک نے شکر کی اور اس کی دولت دی ہے وہ تو عظیم الشان روایت کے لوگ ہیں. میں عمومی رویے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ عام طور پر شکوے شکایت کی بات بہت ہوتی ہے. ان کے یہاں پونجی کون سی ہے؟ وہ جو صوفیاء نے اپنی شاعری میں جس پونجی کی بات کی ہے. کون سی پونجی؟ جو آخرت کے لیے ہمارے لیے اخروی زندگی کا سبب بنے گی. اور پھر مجھے کہنے دیجئے کہ بابا فرید کا وہ ایک مشہور زمانہ شعر ہے کہ سیوا کرنا کم جنہ دا مال نہیں بندے پلے. سیوا کرنا کم جنہ دا مال نہیں بندے پلے، سوئی آپو ننگی رہ کے سیوے سب دے پلے. یہ جو پونجی ہے، یہ جو تروپے بھی ان کی کتاب ہے، یہ تروپے بھی اصل میں بابا فرید کی اسی شعری روایت کے فنی تدبوں میں انہوں نے یہ عنوان تجویز کیا کہ جو فقیر ہوتا ہے وہ ڈپارٹ نہیں کراتا، وہ جدائی پسند نہیں کرتا، وہ ملواتا ہے. جتنے بھی صوفیاء ہیں، جتنے بھی لوگوں نے صوفیاء کو، سچے صوفیاء کی تعلیم تو اصل تو ظاہر ہے قرآن پاک اور حدیث پاک کی ہے، لیکن صوفیاء کے ہاں بھی جنہوں نے صوفیاء کے ذریعے سمجھا ہے اسلام کو، صوفیاء کے ذریعے انسانی تعلیم کو سمجھا ہے، تو یقین کیجئے کہ وہ جدائی کی بات نہیں کرتے، وہ عدم برداشت کی بات نہیں کرتے. ان کے یہاں وہی رویہ ہے جو ڈاکٹر فقیر محمد فقیر بابا پنجابی کا رویہ ہے. یہ جو سہیل احمد عزیزی مزاح گو بہت بڑے مزاحیہ آرٹسٹ ہیں. میری جو آخری کتاب ہے اپنا پنجابی شاعری کا جو میرا مجموعہ تھا اپنی چھاں دا سیک، وہ سہیل احمد عزیزی اور ان کے مرحوم بھائی جنید اکرم نے چھاپا تھا کہ رکھی لوکاں نال فقیرہ ایسا بین کھلون. یہ سلیم مرزا صاحب کی پوری شاعری کا جو ایک محور ہے، یہ تقریباً جو 10 کتابیں اب 11ویں کتاب ہے، ان تمام 11ویں کتابوں کا نچوڑ اگر ایک شعر میں صوفیاء کے درجے میں ہم دیکھیں گے کسی ان سے سینئر کا، تو وہ جو ان کا محور ہے کہ رکھی لوکاں نال فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوویں تے حسن سارے نہ ہوویں تے رون. یہ جو اس سے پہلے ہمارے بہت ہی سوز خان بڑی دردمندی کے ساتھ کہ قبر بھی روشن ہو ایسا رویہ اختیار کرے، وہ جو شعر یہاں جو ہے ترنم میں پڑھ کر گئے ہیں، تو یہ جو قبریں بھی روشن ہوتی ہیں یہ انہی لوگوں کی روشن ہوتی ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کو پیسے کی نظر سے نہیں دیکھا، دنیا کو دنیاوی جاؤ حشمت سے نہیں دیکھا. یہ ساری کی ساری سچی اور سچی شاعری ہے. اور میاں محمد بخش صاحب سے لے کر ہمارے آج کے عہد تک اتنے عظیم و شان اس دردمندی میں رہنے والے شعراء گزرے ہیں، کس کس کا نام لیا جائے. مجھے محراب خاور یاد آتے ہیں، مجھے اختر امام رضوی یاد آتے ہیں، مجھے استاد سلیم رفیقی یاد آتے ہیں، مجھے افضل پرویز یاد آتے ہیں، مجھے جاوید احمد، ہمارے بہت سارے دوست، شیراز طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. عابد رجوع صاحب سے 40 سال سے میرا ساتھ ہے، ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں پٹواری پروگرام، اور ہم 40 سال سے ہم دونوں بھائی کبھی نہ کبھی ہماری ملاقات ہو جاتی ہے. بہت بے پناہ لکھنے والے ہیں. گجرات کی طرف جائیں تو غنیمت کنجائی سے اگر ہم شروع کریں، جو ہمارے یہاں شمالی پنجاب کے پہلے باضابطہ فارسی کے شاعر تھے، غنیمت کنجائی سے شریف کنجائی صاحب تک، اور شریف کنجائی صاحب سے لے کر پھر منیر کنجائی صاحب تک، اس میں زہیر کنجائی صاحب بھی ہیں، اکرم کنجائی صاحب بھی ہیں، ہمارے فیصل کنجائی صاحب بھی ہیں، اور یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں دوست. تو یہ ایک سارا سفر جو ہے، یہ سارا سفر محبت کا سفر ہے اور درد کا سفر ہے. درد کے سفر سے میرے بہت ہی ذہین اور فتین شاگرد اور اپنے بہت ہی عمدہ فکشن رائٹر حکیم عبدالرؤف کیانی یہاں تشریف فرمائے. ان کی کتاب ابھی حال ہی میں چھپی ہے، اس کا نام ہے درد کا آخری طواف. درد کا آخری طواف کے لیے جو میں نے لکھا ہے وہ آپ سماعت بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بھی کہ درد کی مختلف کیفیات کو میں نے جس طرح بیان کیا ہے. کوشش کی ہے کہ لفظ درد کو اور لفظ عشق کو اس طرح بیان کیا جائے کہ نئی نسل سے کوئی درس بھی لے. ویسے تو درس لینے کے لیے اگر وہ چاہے تو ہمارے پاس بے شمار صوفیاء کا کلام بھی ہے اور قدم قدم پر ہمارے پاس دانش واران دہر موجود ہیں. میں تو بہت ہی خاکی انسان ہوں، مگر مجھے ذاتی طور پر جو بات بہت زیادہ اچھی لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ انہوں نے آج بھی اپنی اس تعارفی تقریب کو اپنے اس جنم بھومی میں اس کا اہتمام کیا. یہ اگر چاہتے تو اس تقریب کا اہتمام ہم اسلام آباد بھی کر سکتے تھے اور ہم نے کیا بھی، ان کی کئی کتابوں کے فنکشن وہاں بھی کیے. یہ اگر چاہتے تو گجر خان شہر میں بھی اس تقریب کا اہتمام ہو سکتا تھا، مگر یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ جو جینون رائٹر ہوتا ہے، جینون فنکار ہوتا ہے، وہ اپنی مٹی، اپنی ریتل، اپنے وسیب، یہ اگرچہ یہ سارا وسیب ہی ہے خطہ پٹوار، اگر گجر خان شہر میں بھی ہو تو ظاہر ہے وہ بھی وسیب ہی ہے گجر خان، مگر یہاں اس لیے کیا کہ یہاں انہیں اپنا بچپن آواز دیتا ہے.
वो बचपन जो मक्के से मदीना हिजरत करते हुए आका मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे, यानी ये जो बचपना होता है इसमें आदमी को चूंकि इसमें एक खास किस्म की मिथ होती है और वो मिथ आदमी को उसका पीछा नहीं छोड़ती। और ये इसका हासिल यही था कि आज ये तकरीब जो है ये 11वीं तकरीब, और अब जब ये 12वीं तकरीब के लिए इनकी किताब इंशाल्लाह आएगी तो मेरी उसमें ख्वाहिश है कि 12वीं तकरीब जब मुकम्मल हो तो फिर खास तौर पर इनको कम अज कम 21 या 45 तोपों की सलामी ना हो तो 12 तोपों की सलामी जो है वो मोहम्मद की ज़िंदगी और इनके सारे कामयाब शेरी सफर में जो एक नाम, जो एक याद हमेशा मेरे दिल के लौह पर बहुत ही अकीदतमंदाना अंदाज में अपनी छप दिखाती है, वो हमारी भाभी जान। इनकी अहलिया और हमारी भाभी जान ने बहुत कमाल मेहमानदारी के साथ, हम यहाँ से हर साल ही तकरीबन जाने वाले शायर अदीब जो दुनिया के दूसरे ममालिक में तो जाते ही हैं, मगर इंग्लैंड में हमारा ज़रूर एक चक्कर होता है। मुझ नाचीज़ के भी 26 मरतबा सिर्फ बरतानिया के अदबी दौरे हैं जिसमें सेमिनार्स हैं, शायरी है। तो उन 26 दौरों में मुझे याद नहीं है कोई एक मरतबा भी ऐसा हो कि मिर्ज़ा साहब वहाँ पे मौजूद हों और इनका फ़ोन ना आया और इनके अंदर मिलने की बेताबी ना हो। ये इंसान दोस्ती का ऐसा फ़ख्र है कि जिस पर मैं जितना नाज भी करूँ कम है, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ एक मेरे लिए नहीं है, कोई भी यहाँ से जाए, और ये सिर्फ खिता पोटवार के लोगों के लिए नहीं आई या खिता पोटवार में पोटवारी शायरी करने वाले माँ बोली, इसके अलावा भी कि जो आए कि हम दिल कुशादा रखते हैं। फैज साहब का मिसरा है, इनके यहाँ ये कुशादगी जो है वो खालिसतन एक सूफी की कुशादगी है। मुझे आज मुनीर साबरी साहब की पहले वो नज़्म जो नातिया नज़्म थी, इन्होंने जिस कमाल हुनरवरी के साथ सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो सीरत निगारी के नकूश जिस तरह शायरी में मंजर निगारी की है और जिस तरह उसकी झिलमिल उतरती है, पाकीज़ा झिलमिल कमाल है। और उसके बाद जिस तरह इन्होंने बहुत ही उम्दा और एक यादगार नज़्म, उसमें भी सरापा निगारी की कैफियत को बड़ी उम्दगी से बयान किया, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे मुनीर साबरी साहब की ये नज़्म सुनते हुए मुनीर नियाजी साहब का वो पंजाबी शेरी मजमुआ याद आ गया, रस्ता दसन वाले तारे। तो ये रास्ता दर्शन वाले वो तारे हैं जो सच्ची बात ये है कि जब रास्ता दिखाने के लिए आए तो बहुत सारे भूले भटके भी अपनी मंजिल पर पहुंचा। मुझे बशीर मलंग साहब की नज़्म और ख़ास तौर पर उन्होंने अपनी जो तबाजात नज़्म सुनाई है वो भी बहुत कमाल की है। और मुझे बशीर बाबा से बशीर मलंग तक का पंजाबी का सफ़र जो है वो मुझे याद आ गया। और बशीर बाबा और बशीर मलंग के साथ साथ मुझे जंग का एक मलंग भी याद आ गया, शेर अफजल जाफरी। शेर अफजल जाफरी ने भी मलंगाना कैफियत को उर्दू शेरी मजमुओं में इस तरह परोया है कि सैयद ज़मीर जाफरी साहब को भी ये कहना पड़ा है कि झंग का ये मलंग उर्दू शेरी अदब का नाज है। मुझे तौहीदी साहब के जो काम इन्होंने किया है वो काम तो जाहिर है कि इनकी आखिरत संवारने के लिए यकीनन वो इसमें कामयाब हैं, मगर यहाँ बार बार एक लफ्ज़ की तकरार हुई कि वो पंजाबी में इन्होंने मंजूम तर्जुमा किया है। जो 10 जिल्दें इन्होंने पंजाबी में मंजूम मुरतब किए हैं वो पेश किया, उसको उसी तरह 10 जिल्दें उर्दू में भी हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि तहसीन एक मरतबा फिर हो, 10 जिल्दें उर्दू में और 10 जिल्दें पंजाबी में तौहीदी साहब ने। तो मैं यहाँ इनकी बहुत सारी और भी हवाले हैं, बहुत सारी और सांझ है जो मुझे करनी है, मगर मैं ये समझता हूँ कि अभी एक कली है, एक बंद, 2 मिसरे हैं, 2 शेर हैं मियाँ साहब के कि दिल पर मुख विखांदा नहीं, दाग मेरा किस तरह, दिल पर मुख विखांदा नहीं, दाग मेरा किस धोना, साजन दा दर छोड़ मोहम्मद कै दर जा खलोना। अब ये जो कै दर जा खलोना यानी साजन का दर कौन सा है? अल्लाह तबारक व तआला का दर। जो तौहीदी लोग हैं वादतुल शहूदी नजरिया, अब ये एक अलग बहस है सूफिया के यहाँ कि वादतुल वजूदी और वादतुल शहूदी, ये एक सूफिया की बहस है और ये बड़ी मार्फत की बहस है, बड़े नाजुक मकामात इसके लिए आते हैं। और ये अभी जो गुफ्तगू है जाहिर है ये मौजूदा जो तकरीब है वो इसमें इसकी गुंजाइश नहीं है कि इस पर गुफ्तगू की जाए, मगर एक तरफ मैं इशारा ज़रूर करूँगा कि इन्होंने इसी इबादतुल वजूदी अपने नज़रिए को और खालिसतन जो दिल से अपने अल्लाह पाक को जो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है उसका इकरार करते हुए रब एक गोरख धंधा वाली बात नहीं की।
नाज ख्यालवी साहब हमारे लाइलपुर के बहुत ही पंजाबी के मुमताज शायर और नुसरत फतेह अली खान साहब ने उनकी वो कवाली गाई है रब एक गोरख धंधा। तो इनके यहाँ रब को ढूंढने के लिए और रब को पाने के लिए इस तरह को कोई तरक्की पसंदाना किस्म का नजरिया या शायरी का ख्याल नहीं है। ये खालिसतन वो ख्याल है और खालिसतन वो कैफियत है जो कुरानी कैफियत है और जो हमारे सूफिया की शेरी कैफियत है। इस पर मैं इन्हें खास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बरतानिया में 50 साल गुजारने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को उस मॉडर्निज्म के साथ नहीं जोड़ा जिस मॉडर्निज्म ने हमें आज अपने आप से इतना दूर कर दिया है। मैं कोई उस इंतहा पसंदी पर अपने आप को नहीं देखता जहाँ सर सैयद अहमद खान और अकबर अलाहाबादी जैसी दो अजीम शान शख्सियात एक दूसरे से नजरियाती इख्तलाफ के मामलात में उलझ रही थी। कोई कहता था कि सर सैयद अहमद खान साहब का नजरिया अदब जो है वो बेहतर है और कोई कहते थे कि अकबर अलाहाबादी बेहतर है। हालांकि दोनों अपने अपने मकाम पर बिल्कुल ठीक थे, सिर्फ उनका जो इजहार का अंदाज था, उनका जो असलूब था वो ज़रा मुख्तलिफ था। इसलिए कि अकबर अलाहाबादी के जो साहबजादे बरतानिया में पढ़ने के लिए गए थे वहाँ पर उन्होंने एक मेम से शादी कर ली और फिर वो ख़त किताबत का ज़माना था, उसमें वो ख़त किताबत के सिलसिले भी बंद हो गए। तो वो फिर अकबर अलाहाबादी को उसी शिद्दत कर्ब के साथ जो शायरी करनी पड़ी उसमें ये भी हुआ कि हुए इस कदर मुहज़्ज़ब कभी घर का मुंह ना देखा, हुए इस कदर मुहज़्ज़ब कभी घर का मुंह ना देखा, कटी उम्र होटलों में मरे हस्पताल जा और उठाकर फेंक दो बाहर गली में, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। ये जो इस तरह की एक कैफियत आई है उनकी शायरी में, ये उनका एक ज़ाती दुख भी था। और दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान सिर्फ उस इल्ज़ाम से बचने के लिए कि जो इल्ज़ाम 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान नौजवानों पर और ज़ुलमा पर लगा कि इनकी वजह से हमें शिकस्त हुई और जितने भी हमारे अंग्रेज़ बरतानवी साम्राज्य के जो कारिंदे थे वो उन पर अच्छी मुलाजमतों के दरवाजे भी बंद कर दिए और उनके लिए अजीब तरह के मामलात बनाए। तो उनको बताने के लिए कि सूरत हाल ये नहीं है तो उन्होंने अंग्रेज़ी पर्चों की भी इब्तिदा की। फिर उन्हें कहा गया कि ये अंग्रेज़ के पिट्ठू हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये दोनों सूरत हाल जो तो इन्होंने बरतानिया में रहते हुए, अब चूँकि ज़ाहिर है इतनी मरतबा यूरोप में जाते हुए, दोस्तों से मिलते हुए, वहाँ उनके ख्यालात को देखते हुए, तो मैंने देखा है कि एक इंतहा पर वो लोग भी हैं लिखने पढ़ने वाले जिनके यहाँ हमें इंसानी दर्दमंदी का एहसास तो मिलता है मगर उनके यहाँ बाद इंसानी कदरों के मामलात में अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात मिलते हैं। तो इन्हें मौला कायनात ने अपनी राह से भटकने नहीं की इजाज़त चाहूँगा अख्ताम करने की कि अल्लाह करे कि सलीम मिर्ज़ा साहब की ये सलीमोत्तबा शायरी, सलीमोत्तबा सुखन इसी तरह हमसे दाद तलब होते रहें और इसी तरह ये अपने मखसूस पढ़ने के साथ हंसते मुस्कुराते खंदा जबीनी के साथ इस मोहब्बत वाली फ़ज़ा को रवान रहे। आप सबका बहुत माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छे जी। सादे मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर निसार तुराबी साहब